والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر، قابل تعظیم شہزاد حضور اشرف العلماء نظام ملت حضرت علامہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، محترم و مکرم حضرت مولانا غلام حسین رضوی صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم سے متعلق ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا۔ اس بستی والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس بستی میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے جس ادارے سے پڑھ کر نکلنے والے بچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ گھروں میں بھی روشن کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی روشن کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر یہ مدرسہ جو نظر آتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے چٹائی پر بیٹھ کر، استاد چھوٹے سے گدے پر بیٹھ کر وداؤٹ اے سی والے کمرے میں پنکھے کے نیچے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ دنیا میں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے بچے اور جو خود علم کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، عام دنیا کا کوئی شخص کہیں جائے یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ کہیں جائے تو اس کے لیے سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، لیکن ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ ان بچوں کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ نہیں، معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عام آدمی کسی اور کا مہمان ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ کسی اور کا مہمان ہوتا ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سید الانبیاء کا مہمان ہوتا ہے،
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता है। आपके मेहमान की अगर कोई खिदमत करे तो आप खुशी से फूले नहीं समाते और खिदमत करने वाले के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई शख्स नबी के मेहमान की खिदमत करे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत कितनी दुआएं उसे देते होंगे और उसके लिए कितनी बरकतों की बशारत मिलती होगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं थोड़े से वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आपकी समाअतों के हवाले करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने दुनियावी एतबार से अपनी सोच ये बना ली है कि जिससे हमें मोहब्बत होगी हम उसकी पसंद का ख्याल रखेंगे। मिसाल के तौर पर हुजूर निज़ाम मिल्लत हमारे घर तशरीफ़ लाए तो हमारे जहन में ये चीज़ होगी हज़रत को क्या पसंद है, उसी एतबार से ज़ियाफ़त की जाए। सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी सामने पेश की जाएगी। इसी तरीके से गोश्त खाते हैं, गोश्त पेश किया जाएगा। बग़ैर नमक का खाते हैं, बग़ैर नमक की चीज़ पेश की जाएगी। और ये सारी चीज़ें पेश करने की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि हमारे पेश नज़र इनकी पसंद हुआ करती है, इनकी ज़रूरत हुआ करती है, इसके एतबार से हम ख्याल करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ार शॉपिंग के लिए आप गए तो आप देखते हैं मेरे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, ख़रीदते हैं तो बच्चे की पसंद का ख्याल करते हैं। बीवी के लिए ख़रीदने जाते हैं, उसकी पसंद का ख्याल करते हैं। माँ के लिए ख़रीदने के लिए जाते हैं, माँ की पसंद का ख्याल करते हैं। बाप के लिए ख़रीदने जाते हैं, बाप की पसंद का ख्याल करते हैं। दोस्त के लिए ख़रीदने जाते हैं, दोस्त की पसंद का ख्याल करते हैं। उस्ताद के लिए ख़रीदने जाते हैं, उस्ताद की पसंद का ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारा आज मिजाज ऐसा बन चुका, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह के रसूल को क्या पसंद है। अल्लाह अकबर। जब हम कुरान की रोशनी में समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह का ये फरमान हमें पैगाम देता है कि मेरे बंदो, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या पसंद किया? रब फरमाता है रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम दीन को पसंद कर लिया है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने ये दीन हमारे लिए पसंद किया। और आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दीन ही की बुनियाद पर हमारी दुनिया भी संवर सकती है और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। जब तक कि मुसलमान दीन से अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करेगा, उस वक्त उस इंसान की और उस मुसलमान की इज्जत नहीं बन सकती जो दीन से अपने फासले को बढ़ाए रखेगा। आज हमारी सिचुएशन कैसी है मैं आपको बता दूं। हमारी जिंदगी में अब दीन दिए की तरह टिमटिमाता नजर आ रहा है, दिए की तरह टिमटिमाता नजर आता है। दीन से मुसलमानों का ताल्लुक बराए नाम रह गया है। एक मिसाल के जरिए समझाऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी के यहाँ अगर निकाह हो रहा है, बेटे का निकाह है, बेटी का निकाह है, तो आप देखें आपको पता चलेगा कि उसके अंदर दीन के जलवों को तलाश कीजिए, दीन की रहनुमाई को तलाश कीजिए, दीन के उसूल को तलाश कीजिए, दीन के मुताबिक उसके पूरे प्रोग्राम को तलाश कीजिए, तो आप देखेंगे कि दीन सिर्फ मस्जिद में ईजाबो कबूल के पर नजर आता है, बाकी उसकी सारी तकारीब दीन के खिलाफ नजर आएगी। डांडिया भी नजर आएगा, रक्स सुरूर भी नजर आएगा, आवारगी भी नजर आएगी, गंदगी भी नजर आएगी, बेहयाई भी नजर आएगी। लेकिन चूंकि ईजाबो कबूल के बगैर निकाह हो नहीं सकता,
इसलिए हमारा ताल्लुक अब दीन से इतना रह गया। अब तो सिचुएशन ये बन चुकी है कि निकाह का निकाह कहाँ होगा ये भी तस्करा नहीं होता। रिसेप्शन का तस्करा मिलेगा, वलीमे का तस्करा मिलेगा, और निकाह की तकरीब में जाने वालों की पोजीशन देखें तो निकाह में जाने वाले बराए नाम नजर आते हैं। ऐसे टाइम पर रखते हैं जिसमें कोई पहुंचा तो ठीक है और नहीं पहुंचा तो ठीक है, लेकिन रिसेप्शन में हर कोई नजर आएगा, वलीमे में हर कोई नजर आएगा। वलीमा दीन के खिलाफ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये न करो, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन रसूल आजम की सुन्नत समझकर वलीमे में जाता है? आज अगर वलीमा किया भी जाता है और वलीमे में इंसान शिरकत भी करता है तो स्टेटस की बुनियाद पर दावतें दी जाती हैं। आप देखें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्जों के अंदर फरमाया, वो दावत सबसे बुरी है वलीमे की दावत जिस दावत के अंदर गरीबों को न बुलाया जाता हो। सरकार ने उस दावत को बुरा फरमाया। अब आप देखें कि गरीबों को कहां बुलाया जाता है और कहां नहीं बुलाया जाता। गरीबों को कभी दावत नहीं दी जाएगी, गरीबों को वलीमे में बुलाया नहीं जाएगा, रिश्तेदार भी गरीब है तो इग्नोर कर दिया जाएगा कि कहीं ये आए तो हमारा स्टेटस खराब ना हो जाए, हमारी वैल्यू खराब ना हो जाए। और किसी गरीब इंसान को 10-20 को दावत देना हो तो आदमी सोचेगा। कभी आपको याद है कि किसी पार्टी वाले को आपने अपने यहां शादी के अंदर दावत दी हो वलीमे की? कभी आपको याद है किसी मस्जिद के मुअज्जिन को, किसी मस्जिद के खादिम को आपने वलीमे की दावत दी होगी? नहीं। याद रखो, मैं जब सोचने में सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबों को इस तरीके से वलीमे की दावत के अंदर न बुलाने वाले को और उसकी दावत को सरकार आपने जो बुरा फरमाया, उसकी वजह क्या है? अब सुनो, अगर मालदारों को आपने वलीमे में बुलाया, वो आएगा, कभी खाने में नक्स निकालेगा, कभी खाने की थोड़ी सी तारीफ करेगा और कभी पेट पर हाथ फेर कर निकल जाएगा, तारीफ के चंद कलेमात कह देगा, या कहेगा यार डिश बहुत कम थी, या कहेगा कि यार मजा नहीं आया, पता नहीं कौन से कैटरे से खाना बनाया था। लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब जब दस्तरखान पर बैठेगा और खाना खाएगा, हर लुकमे पर कहेगा, ए अल्लाह जोड़े को सलामत रखना, ए अल्लाह इसको बरकतों से माला माल फरमाना। इसलिए कि जितनी कीमती गिज़ाएं तुम वलीमे और रिसेप्शन के अंदर रखते हो, इतनी कीमती गिज़ाएं वो गरीब बेचारा खा नहीं पाता। इसलिए जब उसे मयसर होती है तो जोड़े के लिए दुआ करता है और उसकी दुआ की बरकत से बच्ची बियाह के जाती है तो खुशहाल जिंदगी भी गुजारती है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दीन से अपने रिश्ते को तुम देखो। तिजारत में दीन से रिश्ता कमजोर हो गया, लेन देन में दीन से रिश्ता कमजोर हो गया, पढ़ने पढ़ाने से दीन का रिश्ता कमजोर हो गया, मस्जिद में जाने से दीन का रिश्ता कमजोर हो गया। अब हमारी जिंदगी में दीन दिए की तरह टिमटिमाता नजर आता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं अपने जमाने की बात नहीं करता, जरा गौसे पाक के दौर के अंदर दीन की पोजीशन क्या थी, जरा उसको भी तो सोचो और गौर तो करो। अल्लाह अकबर। सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक नहीफ व नातवा जिस्म वाला बंदा बैठा हुआ था। गरीब गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करता है, मुझे उठाइए। गौसे पाक ने हाथ लगाया, उठ गया और वो नहीफ व कमजोर तवाना बन गया। गौसे पाक ने पूछा, तू कौन है? वो नातवा कहने लगा, मैं नबी का दीन हूं, मैं कमजोर हो चुका था, आपके हाथों ने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। आप जरा सोचो, मुहियुद्दीन इसीलिए कहा जाता है कि गौसे पाक ने दीन को जिंदा किया। रसूल आजम के इस खानदान के फर्द ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा किया। आप अंदाजा लगाएं, जब उस दौर में दीन इतना नहीफ व कमजोर हो चुका था तो आज दीन की पोजीशन क्या है? आज जरा दीन को तलाश करें, अपने घर के अंदर, अपनी जिंदगी में तलाश करें, अपनी सुबह शाम में तलाश करें। अगर मैं ये बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आज मुसलमान की सोच ये बन चुकी है कि हम आज परेशान हैं मुसलमान होने की वजह से, इस्लाम की माअज़ल्लाह इस्लाम की वजह से हम परेशान हैं। हम मुसलमान हैं इसलिए नौकरी नहीं मिलती, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें वकार नहीं मिलता। मैं कहता हूं, तुम पक्के मुसलमान बन तो जाओ, इज्जत तो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। कुरान कहता है,
वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अगर तुम पक्के मोमिन बन गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों में इज्जत का अंबार लगा देगा। कमजोरी हमारे अंदर है और हम सारा इल्जाम इस्लाम पर लगा रहे हैं। मुझे बताओ, जिसने दीन को मुकम्मल अपनी जिंदगी में ओढ़ना बिछोना बना लिया हो, क्या उसे इज्जत नहीं मिलती? आप अंदाजा लगाएं आज किसकी इज्जत की जाती है। आप देखें, रास्ते से अगर कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिसके जिस्म के ऊपर कपड़ा है और उस कपड़े पर पेवन लगे हुए हैं, आप उसे सलाम करना भी पसंद नहीं करेंगे, मुसाफा करना भी पसंद नहीं करेंगे, हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ चलना भी पसंद नहीं करेंगे, उसे झिड़केंगे, ये गरीब है, पेवंद वाला कपड़ा पहना हुआ है, उसे अपने दस्तरखान में अपने साथ बिठाना पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो दीन को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेता है और अपने पूरे वजूद को दीन के सांचे में ढाल लेता है, फिर पेवंद वाले कपड़े हो या कोई भी कपड़ा हो और जिस तरीके की जिंदगी हो, अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है। क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कपड़ा पहनकर तशरीफ लाए थे, उसी कपड़े में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर जब उन्होंने कदम रखा था, उस वक्त जो कुर्ता पहन करके आए थे, जब जब वो कुर्ता फटता गया, जो कपड़ा मिला उसका पेवन लगाते गए, यहां तक कि विसाल के वक्त जब आपके कुर्ते को काटा गया तो उस कुर्ते का वजन 14 किलो वजन था। कहीं चमड़े का पेवन, कहीं कपड़े का पेवन, कहीं अलग कलर का पेवन। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, पेवन वाले कपड़ों की कोई इज्जत नहीं करता, गरीब की कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन जब ख्वाजा आजम की जिंदगी देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ख्वाजा की बारगाह में भीख मांगने वाला वक्त का बादशाह भी नजर आता है। वजह क्या है? ख्वाजा ने पूरे वजूद को इस्लाम के सांचे में ढाल दिया था। दीन को इख्तियार करो, दीन से रिश्ते को मजबूत करो। जितना तुम दीन को अपनी जिंदगी पर नाफिज करोगे, तुम्हें अल्लाह उतनी इज्जत अता करेगा, उतना वकार अता करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह है, आज हम खौफजदा हैं। अखबार पढ़ लिए खौफजदा, कोई मैसेज आ गया खौफजदा, कुछ पढ़ लिया खौफजदा। हम क्यों खौफजदा हैं? दीन से दूरी की वजह से खौफजदा हैं। आइए मैं आपको समझाऊं, कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वलियों को खौफ क्यों नहीं होता है? अल्लाह के वलियों को गम क्यों नहीं होता है? वो कौन सी चीज उनके पास होती है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता है? जानते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है कि इनके बेखौफ होने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न कोई गम। ये हिदायत क्या है? ये दीन है। अल्लाह के वलियों को खौफ इसलिए नहीं होता था कि वो कानून इलाही के खिलाफ नहीं चलते थे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब अमल करते थे तो अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता था। आज हमारी पोजीशन ये है कि अपने मोहल्ले में रह करके हम डरते हैं, अपनों के दरमियान रहकर डरते हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं। अखबार पढ़े तो डर गए, मीडिया पर देखे तो डर गए। वजह सबसे बड़ी ये है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा एक तारीखी जुमला आपके जहन के अंदर महफूज कर लो, शायद जिंदगी भर ये जुमला आपको काम आए। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, हमारा तो एक ही रब है। हमारा, बोलिए, एक ही रब है। ये मेरा जुमला नहीं है, ये मौला अली का कौल पेश कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं, हमारा तो, बोलिए, एक ही रब है और वो तो सारी मखलूक का खालिक है। वो तो सारी मखलूक का खालिक है, लेकिन वो सारी मखलूक का खालिक होकर हमें नहीं भूलता और हम एक रब को भूल करके बैठे हुए हैं। हमारा एक ही रब है, उसके
उसे याद नहीं करते। और उस करीम की शान ये है कि सारी मखलूक उसकी है, लेकिन वो किसी मखलूक को नहीं भूलता, हर एक को उसके हिस्से की रोजी भी अता करता है और हर एक की फरियाद को सुनता हुआ भी नजर आता है। हमारी तबाही की वजह, हमारी बर्बादी की वजह, हमारी परेशानी की वजह इस्लाम नहीं है, हम खुद हैं कि हमने हमारी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए उसूल के खिलाफ गुजारनी शुरू कर दी और दीन से रिश्ता कमजोर हो गया, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आइए मैं आपको बताऊं दीन कितनी इज्जत अता करता है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम हैं रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु, हज करके जब वापस लौट रहे थे, इरशाद वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक मकाम आया। जब उस मकाम पर पहुंचे तो फारूक आजम ने काफले को रुकने का हुक्म दिया। काफले वाले रुके, फारूक आजम रुके और रुकने के बाद फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रो रहे थे, लोगों को हैरत हुई, अर्ज करने लगे अमीरुल मुमिनीन क्या बात है कि आप यहां पर खड़े रह करके रो रहे हैं, कोई खास बात? इरशाद फरमाते हैं ये वही जगह है जहां पर मेरा बाप मुझे बकरियों को चराने के लिए भेजा करता था और मैं यहां बकरियां नहीं संभाल पाता था और उसकी वजह से मेरे वालिद मुझे जद्दो कोप करते थे, लेकिन इस्लाम मैंने क्या कबूल कर लिया कि आज अल्लाह ने मुझे अमीरुल मुमिनीन बना दिया है। आप अंदाजा लगाएं, वो महसूस करते थे कि इज्जत मिली है तो इस्लाम की बुनियाद पर, और आज का मुसलमान ये महसूस कर रहा है और सोच रहा है हमारी माअज़ल्लाह तबाही की वजह हमारा मुसलमान होना है। नहीं, इस्लाम तो इज्जत देने के लिए आया, वकार देने के लिए आया, सुकून देने के लिए आया, इत्मीनान देने के लिए आया। बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, हम तो दीन के सिलसिले में इस हद तक गाफिल हो चुके हैं, इस हद तक गाफिल हो चुके हैं कि माअज़ल्लाह कोरोना के जमाने में और उसके बाद के पीरियड के अंदर भी आप देखें, जहां थोड़ी तंगदस्ती हुई तो सबसे पहले कटौती अपने खर्चे में अगर कहीं करते हैं तो कहां करते हैं? चंदा 500 देते 200 कर डालो, लेकिन मोबाइल हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, घर का एसी भी उतना ही इस्तेमाल करेंगे। गरीबों को इतना देते थे बंद कर दो, पैसे कम हो जाएंगे, मंदी है। मंदी में सबसे पहले इंसान अगर पैसे रोकता है तो दीन के काम में। इतनी सोच बिगड़ गई, इतनी बोदी सोच हो गई। जिस दीन पर खर्च करने के एवज के अंदर अल्लाह तुम्हारे कदमों में दुनिया रख देता है, तुम वहीं पर कटौती कर रहे हो, वहीं पर कम कर रहे हो। आपने शायद कभी महसूस नहीं किया और न कभी महसूस करने की आपने जो है कोशिश की है। आज नाम बदल दिए गए और जो टाइटल मुसलमानों को सबसे बड़े मनसब के अता किए गए थे, आज उस टाइटल को सबसे घटिया काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान बोल रहा है, जबान पर जारी है। हज्जाम को खलीफा बोल रहा है। सोचिए आप, ये लफ्ज कहां चला गया? खतना करने वाले को खलीफा कहा जा रहा है, कहां चला गया ये लफ्ज? कभी महसूस किया आपने? बड़ी 5 स्टार होटल के दरवाजे पर दरवाजा खोलने वाला पगड़ी बांधे हुए नजर आता है, कभी महसूस किया आपने? नहीं, आप नहीं जानते क्या हो रहा है। फ्रांस की सरजमीन पर जब एक कॉन्फ्रेंस हुई और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कई अरब रुपए जिस ईसाई पादरी को मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने और तबलीग ईसाइयत के लिए वहां पर मामूर किया गया था, उस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछा गया कि 40 साल तुम वहां रहे, तुमने कितने मुसलमानों को ईसाई बनाया? अब उसने जो जवाब में कहा उसे सुनिए। कि मुसलमान को ईसाई बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने ईसाई तो नहीं बना, हाँ अलबत्ता इतना मैंने जरूर किया कि मुसलमानों के रिश्ते को इस्लाम से मैंने कमजोर कर दिया। तो पूछा गया कैसे? तवज्जो चाहूंगा, पूछा गया कैसे? तो उसने जवाब में कहा, पहले मुसलमान के बच्चे
अपने माँ बाप को जब घर से रुखसत करते तो खिड़की पर खड़े रहकर या गैलरी में खड़े रहकर फी अमानिल्लाह कहते, अब टाटा बाय बाय करते हैं। आज का मुसलमान ये समझ रहा है ये तरक्की याफ्ता का तरीका है। अगर हमारा बच्चा टाई टाई टाटा बाय बाय हेलो करेगा तो हमारा बच्चा मॉडर्न कहलाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सब घर से निकाला जा रहा है, आपका रिश्ता इस्लाम से कमजोर किया जा रहा है। लेकिन आप समझ रहे हम तरक्की याफ्ता बन रहे हैं। क्या मिला आपको इन चीजों से? जब आप कहते थे फी अमानिल्लाह तो वालिद घर खुश खुश आता था, और जब टाटा बाय बाय कहा तो पता नहीं वो रात को कितने बजे आएगा। अस्सलामु अलैकुम छोड़ दिया गया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून थैंक यू जज़ाकल्लाह भूल गए। हमारा रिश्ता डे बाय डे इस्लाम से वीक होता जा रहा है, इस्लाम से कमजोर होता जा रहा है। और यही वजह है कि बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की राह के ऊपर मुसलमान बढ़ता जा रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि दीन कितना जरूरी है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनकी जिंदगी का जायजा लीजिए। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, जब अपने बेटों को उन्होंने जमा किया तो जमा करने के बाद फरमाया, क्या नसीहत फरमाई? ववस्सा का लफ्ज कुरान में आया है, उन्हें वसीयत फरमाई। अल्लाह अकबर। आप सोचें क्या वसीयत फरमाई? इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया है, मत मरना मगर इस्लाम की हालत में। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं कि एक बाप को फिक्र थी कि मैं इस हाल के अंदर इस दुनिया से जाऊं कि मेरे बेटे इस्लाम पर कायम रहें, दीन पर कायम रहें। आज क्या वसीयत होती है? बेटे जरा देखना, बड़ी मेहनत से मैंने दुकान बनाई है, बड़ी मेहनत से मैंने बंगला बनाया है, बड़ी मेहनत से मैंने फैक्ट्री बनाई है, बड़ी मेहनत से मैंने घर बनाया है। बेटे जरा ख्याल रखना, अगर तू बढ़ा सकता हो तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम इसको बर्बाद होने से बचा लेना। ये वसीयतें हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। आज कौन सा बाप अपनी तमन्ना ये रखता है कि मैं इस हाल में इस दुनिया से जाऊं कि मैं अपने बेटे को सजदा करते हुए देख लूं, अपने बेटे को इबादत करते हुए देख लूं, अपने बेटे को कुरान पढ़ते देख लूं, अपने बेटे को माँ बाप का हक अदा करते देख लूं। आज किसी बाप की ये तमन्ना नजर नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। अगर तमन्ना आती है, नजर आती है, तो यही नजर आती है, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, चाहे दीन से रिश्ता कमजोर हो या चाहे दीन से रिश्ता जुड़ा हुआ रहे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दीन इस्लाम को एक फ्लेक्सिबल दीन की हैसियत से पेश किया है। इतना आसान दीन है कि इस दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल दीन है। आप खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ें। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक रोजे के मसले को कुरान की रोशनी में समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी रियायत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या बीमार हो तो बाकी के दिनों में गिनती के दिन पूरे कर लेना, लेकिन तुम्हें रोजे की रुखसत है। आप जरा सोचो, इतनी रियायत कुरान दे रहा है। और फिर कुरान की इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मालिक आप पर कितना मेहरबान है। अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। ये वो कह रहा है जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। आपने दीन से रिश्ते को कमजोर करके क्या पाया? दीन से रिश्ता कमजोर हुआ, आवारा बन गए। अगर दीन से रिश्ता मजबूत होता, निगाहें झुकी होती, दीन से रिश्ता मजबूत होता तो हम लोगों की ही मस्जिदों के दरवाजे पर 50 साल पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, गैर मुस्लिम औरतें और मर्द पानी का गिलास लेकर के खड़े होते, नमाजी निकल रहा है, जरा दम कर दे, मेरी बच्ची को शिफा मिल जाएगी। लेकिन आज 50 साल पहले मोहल्ले का कोई शख्स अगर हज करके आ जाता,
اور محلے میں کسی گھر والوں میں جھگڑا ہوتا، حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب ڈرتے ہیں، حج کے نام پر ہی پیسے لوٹ رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو، دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اپنے وجود پر کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی، اس مفکر سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے، میں چاہتا ہوں ہر جگہ دین کے جلوے نظر آئیں، کوئی ترکیب اس کی ہو تو بتائیے۔ فرمایا بیٹے آسان سی ترکیب ہے، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک چیز تلاش کرنے کا آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا تلاش کر لینا، ابتدا کرو اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں اسلام کتنا ہے ذرا اسے تلاش کرو۔ پھر اپنی زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنی سوسائٹی میں دیکھو، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ اسلام کہاں ہے، کتنا ہے۔ ایک بات عرض کروں، کیوں آج اسلام کی قدر نہیں ہے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک مال کے اندر کیش کاؤنٹر پر ایک پیدائشی مسلم بچی کھڑی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی، اور ایک باپردہ خاتون وہاں پر آئی اور کیش کاؤنٹر پر اس نے اپنا سامان رکھا، تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئی ہیں، اتنا حجاب، اتنی ساری چیزیں، اور ان کنٹریوں کے اندر اس پر عمل کرنا ایزی ہے، ہمارے یہاں برٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ عورت تھوڑا سا آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھی، جب کوئی مرد نظر نہیں آیا اس عورت نے نقاب ہٹایا، تو جانتے ہیں نو مسلمہ تھی، وہ نیو مسلم عورت تھی، کنورٹ ہوئی تھی، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئی تھی، اور جو جملہ اس نے کہا، بس اتنا ہی اگر آج آپ یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اس نو مسلمہ عورت نے کہا، میری بہن، میں نہ سعودی سے آئی ہوں، نہ عرب ہوں، نہ عربی ہوں، نہ کچھ ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تم کو اسلام مفت میں ملا ہے اور ہم کو اسلام قربانی سے ملا ہے، اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے، پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی تم نے؟ کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی،
کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت و رسوائی دے گا. جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور ہو گیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ محمد عرفان صاحب کو، ان کے رفقا کو، سلیم بھائی کو، کہ انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ ضرور قائم کیا ہے، لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، ان کے گھر والوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، اور قبر کے اندر دین کے بارے میں سوال ہوگا، بے دھڑک یہ جواب دے کر اپنی نجات کا بھی سامان بنا لیں گے اور اپنے والدین کے لیے بھی نجات کا سامان بنا لیں گے. اس لیے ان اداروں کو مضبوط کرو اور خود کو دین سے مضبوط کرو. دین کا کوئی آرڈر سنو تو پھر چوں چرا مت کرو، سر جھکا دو. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. گلی کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھے ہوئے تھے. ان غریبوں نے امام حسین کو دیکھا. ظاہر سی بات ہے نوجوانان جنت کے سردار کو جب وہاں دیکھا انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے اور حضرت کی نظر ان پر پڑی امام علی مقام کی تو سلام کیا. تو ان غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے. غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے. امام حسین نے سواری روکی، اتر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھا لیا اور پھر کہا تم لوگ بھی میرے گھر آنا کھانے کے لیے. اس کے بعد امام حسین سواری پر سوار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے. خادم نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم کے شکر کے آنسو ہیں، میرے کریم کی بارگاہ میں یہ شکر کا نذرانہ ہے. حضور کس بات پر شکر؟ کہا ان لوگوں نے جب مجھے بلایا کھانے کے لیے نا تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. بس میں اتر گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں میں میرا شمار نہیں فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. آپ یہ اللہ کے کلام پر ارشاد، اللہ کے کلام پر عمل کا جذبہ تھا. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈالو. وہ کون سی برائی ہے جس برائی میں ہماری قوم کے بچے نظر نہیں آتے؟ گٹکھا، سگریٹ، گندی پکچریں دیکھنا، آوارگی، رات 3 بجے تک جاگ کر کے گلیوں کے اندر ٹائم پاس کرنا. ہر برائی کے اندر ہماری قوم کے بچے نظر آتے ہیں. اے لوگو اپنی زندگی کو بدلو، تبدیل کرو اپنی زندگی کو، اور قانون اسلام کے قریب ہونے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس علاقے کے حوالے سے اتنا بھی جانتا ہوں کہ اس علاقے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماشاءاللہ گھروں کے اندر محفل نعت میں جاتے ہیں، اور جب وہاں کے پیسے ملتے ہیں، نذرانہ ملتا ہے، اسے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ پیسے کس کام میں استعمال کرتے ہیں؟ جب وادی نور میں اجتماع ہوتا ہے نا تو اسی پیسے سے بس بھر بھر کے یہاں سے اجتماع میں لے کر کے جاتے ہیں. آپ ذرا سوچو یہ بچوں کا جذبہ، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا اس مدرسے کی بنیاد پر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو پروف کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن کے اندر رہے، ہمیں کوئی کام، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا جو انسانیت کے خلاف ہو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. ہر برائی سے، ہر بد کرداری سے، ہر آوارگی سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر ایسا انسان بناؤ جس انسان سے نفع پہنچتا ہو. اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ. بس یہ آخری بات یاد رکھیں، زمین والوں پر بوجھ مت بنو. زمین والوں پر بولیے بوجھ مت بنو، زمین والوں کی ضرورت بنو. دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. ضرورت بنو، پڑھو، علم حاصل کرو، دین کا بھی دنیا کا بھی، دونوں علم حاصل کرو. جب
जरूरत बनोगे तो दुनिया तुम्हें फुटबॉल की तरह नहीं मारेगी, बल्कि दुनिया तुम्हें अपने सर पर बिठाती हुई नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हम सब पर करम की नजर फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, कानून इलाही का पासदार बनाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।